بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 جگہیں بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانوں سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ اتری، بادل مشرق کی طرف چھوٹ گئے، ہوائیں ساکین ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر فرشتے سے بچا بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامیہ مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا کیا ہے۔
बंदा तो असबाब इख्तियार करता है, और बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के जिस्म में सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपने काम को करें, बाकी जो काम है वो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दें। एक मर्तबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो, और अल्लाह पे भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है। अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा इकराम ने कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँट को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे, और मुक़द्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे जिम्मे जो काम है हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं, हम तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाएगा, क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ है, वो हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप पहले काम पर जाओ, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो कि परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क़ थोड़ी मिलता है। आपने कमाया, बस कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वो सालन या सब्ज़ी हमारे सामने आई। उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया, तो अब हमारे हलक पर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है। वो फ़रिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नलियाँ होती है। एक नली होती है जो सांस की होती है, एक नली होती है जिससे रिज़्क़ अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नली बिल्कुल बराबर होती है और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग हो जाती है। अब आप ये सोचकर देखिए कि फ़रिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछता है, हमारे हर लुक़मे पे, मौला हम इसके लुक़मे को ज़िंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बाइस बना दूं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्ज़ी होती है तो वो लुक़मा ज़िंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती है तो वो लुक़मा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुक़मा बजाय खुराक वाली नली में जाने के अगर वो सांस की नली में चला जाए तो फिर इंसान ख़त्म हो जाता है। तो आप देखिए, हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फ़रिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि उस निवाले को, उस लुक़मे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने असबाब इख्तियार किया है, यानी उसको असबाब इख्तियार करना कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो
उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि जाकर आप जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा था कि जाकर आप शराब बेचो? अल्लाह ने कब कहा था कि जाकर आप झूठ फरेब मक्कारी करो? अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनवाई और उस पे लिखवाया हजा मिन फजल रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा तो क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रॉड करवाया। हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी और ये लिख रहा है हजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहाँ कहा था कि झूठ बोल के कमाना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि ढोंग करना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि फ्रॉड करना? तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है, तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हो, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़े। बाथरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़े। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो ऐसी जगह पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।